an ideal situation, every person with disabilities are equal before the law. However, as activists and professionals closely involved with the disability sector, we must keep in mind the diversified nature of the disability community. The abilities and challenges faced by people with different types of impairments are most often not similar in nature, so an umbrella solution is not always possible. जीजा ये कहना चाह रही हैं कि विकलांगता का मतलब ही ये है कि आप सामान्य नहीं हैं, तो आपकी कुछ जरूरतें अलग अलग हैं। इसलिए अगर आप ये कहें कि अलग अलग जरूरतों के लिए सबके लिए एक ही आप सोल्यूशन निकाल के देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। विकलांगता में आपको हर इंसान की जरूरतों के मुताबिक उसका हल ढूंढना पड़ता है, उस इशू का हल ढूंढना पड़ता है। Legal capacity is a complex arena. Here I would like to speak from a point of view of a person with cerebral palsy, representing the sector of developmental disabilities. As we are all aware of the complexities and the different types of cerebral palsy, there are some of us who can live a so-called normal life with some degree of physical support. जीजा सेरेब्रल पॉलिसी की तरफ से बात करना चाहती हैं और वो ये कहती हैं कि सेरेब्रल पॉलिसी में भी जैसे सर ने बताया बहुत तरह के अलग अलग डिग्रीज होते हैं, कुछ सीवियर होते हैं, कुछ प्रोफाउंड होते हैं, कोई माइल्ड होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके अपना जीवन सामान्य तरीके से काट सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते। For the next group may require higher degree of support both in their ADL activities as well as in taking decisions. They may be capable of self-determination as regards to making choice about some of the areas concerning their lives. However, when it comes to taking decisions regarding legal matters such as managing their investments, ownership of properties, for entering into legal contracts, they may require greater degree of support. कह रहे हैं कि कुछ बिल्कुल सामान्य तौर से जी सकते हैं थोड़े सपोर्ट के साथ। एक अगली कैटेगरी जो है उसमें वो कुछ डिसीजंस ले सकते हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में है, लेकिन अगर उनको कोई कॉम्प्लेक्स या बहुत वैसे डिसीजन लेने पड़े कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का क्या करूं या मैं अपने पैसे को कहाँ लगाऊं जहाँ पर वो सुरक्षित रहे, तो उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। And there is a third group who can classically qualify as people with high support needs. Their extent of taking decisions might be limited to making choices about food and what clothes they would prefer to wear, but in most situations would require close monitoring, even with regards to taking their daily medications. Taking decisions about legal matters are likely to be far-flung expectations from them. और तीसरी कैटेगरी जो है उसमें ऐसे लोग आते हैं जो केवल शायद अपने खाने और पहनने के बारे में या ऐसी चीजों के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, बाकी जो डिसीजंस हैं वो उनके बस की बात नहीं है। Hence we see a range of abilities. I in no way support plenary guardianship. It equals to degrading of human dignity. Limited guardianship is the answer. However, the question here arises, who decides on the extent or the degree of support required? A critical area. What can be defined as infringement of rights? ये कह रही है कि मेरी जो राय है वो ये है कि प्लीनरी गार्डियनशिप, प्लीनरी मतलब कि गार्डियन जो है वो पूर्णतया विकलांग की सोचने की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो टेक ओवर कर ले। वो कह रही है कि प्लीनरी गार्डियनशिप को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लिमिटेड गार्डियनशिप मतलब कुछ डिसीजंस के लिए जिसकी जरूरत है वहीं पर आए, लेकिन ये कौन डिसीजन लेगा वो यही सोच रही है। Also, I want to point out on some
democratic institutions due to their government, the right to make ये कह रही है कि कई ऐसे लोग भी होते हैं जो दिमागी रूप से बहुत तेज होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है तो अपनी शारीरिक विकलांगता के कारण वो शायद डिसीजंस ना ले पाए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास ना करें और हम उनकी बात को समझने की कोशिश ना करें जिस हिसाब से हमें समझनी चाहिए, तो हम उनको कभी भी कोई डिसीजन लेने का वो हक नहीं देंगे। there is a category of people who use augmentative and alternative कह रही है कि एक ऐसी कैटेगरी है लोगों की जो बहुत सारी चार्ट्स के जरिए या और तरह से कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, उनके जरिए वो अपनी बात रख सकते हैं। and for them, like people with hearing impairment, they will need and they need communication. ये कह रहे हैं कि जैसे हम बधिर लोगों के लिए इंटरप्रेटर्स यूज करते हैं, इसी तरह से इन लोगों के लिए भी कम्युनिकेशन में सहायता करने के लिए इंटरप्रेटर्स या मशीनें हमको यूज करनी पड़ेंगी और ये प्रोविजन एक्ट में होना चाहिए। And what just sad is we are often misunderstood and misinterpreted because of our physical ये कह रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और हमें गलत समझते हैं, क्योंकि हम एक तरह से दिखते हैं तो वो हमें देखकर अपना मन बनाकर फिर उसके बाद जब हमारी बात सुनते हैं तो उस पर्दे के पीछे से सुनते हैं। I would request that we all make it short because we are running out of time. I'll start with you, sir. Rajiv, I'll come to you. I appreciate the request, but at the same time, the issues are really contentious. So I'm afraid, because we are misinterpreting, our legal system itself is misinterpreting the provisions which are actually not to be so. What I'm trying to say is, National Trust Act does not force legal guardianship on anybody. Nor it says that even the letter should be issued by the local level committee that so and so person does not need a guardian. So there is no presumption of legal incapacity. There is no presumption as it exists in the Act which is already passed by the Parliament. Why are we debating that again and again if some mechanism, because some illful or wrong interpretation, let's address those issues. And because the same thing is likely to happen no matter what provisions we have in RPD Bill 2014, when it comes to interpretation, people and the authorities and the babus will find it to interpret it in the way which will be most convenient to them. That is my contention. Point number two. We'll debate over it. 2 minutes. Two,
when it comes to persons with intellectual disabilities. See, there are in developmental disabilities, sans intellectual disabilities. So I appreciate their concern that because of communication lapses, they may be misinterpreted to have a particular incapacity. But in case of persons with intellectual disabilities, they are definitely going to need support, of course with their own choice. Nobody is denying that. And in countries like India, and especially the developing countries, there are no instances of state having thrust guardianship onto our children. Why I am referring to them as our children is under these categories with intellectual disability. So let's not compare the examples from the developed countries, which are not at all going to be applicable to this country for another 50 years. So let's have a more practical and prudent approach, understand how our policymakers, politicians and bureaucrats are likely to misinterpret whatever provisions we may include in the proposed RPD, and then work around that, rather than debating or taking examples from some other place which may not be in total applicable to us. I just want to clarify a couple of things because I think this is important at this stage. I'm sorry I'm taking up a little time. देखिए, ऐसा है कि मानसिक क्षमता की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट में भी जब हम गार्डियनशिप की बात करते हैं तो हम सपोर्टेड नहीं, सब प्लांटेड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि जो विकलांग व्यक्ति है उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर भी गार्डियन कुछ काम कर सकता है। अब ये जो इशू यहाँ पर आकर अटकता है कि अगर एक विकलांग व्यक्ति कुछ नहीं चाहता है तो क्या उसकी इच्छाओं के विरुद्ध ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट उसको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक उससे थोड़ा सा इशू क्लियर हो जाता है। देखिए, जिन लोगों को मेंटल इलनेस है, ठीक है, जिनको हम मानसिक रोगी कहते हैं, तो क्या है कि जो हमारा मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मानसिक रोगी हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो ब्लैंकेट, मतलब चाहे आप ड्राइव कर सकते हैं, चाहे आपको बहुत ज्यादा मानसिक रोग नहीं है, एक बार आप डिक्लेयर हो गए कि आपको मानसिक रोग है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर आपने ये डिक्लेरेशन कर दी तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हम ये देखें कि कौन जब, और उसका रीजन क्या है कि वो रीजन ये है कि ऐसे व्यक्ति को अगर लाइसेंस मिला तो शायद वो एक्सीडेंट करके अपना और दूसरों के जान माल को नुकसान पहुंचाएगा। अगर हम सोचें तो और हम ये देखें कि एक्सीडेंट्स की संख्या जो है वो कहाँ होती है, किस एज ग्रुप में होती है, तो हम ये देखेंगे कि 18 से लेकर 24 साल के जो नौजवान होते हैं ज्यादातर एक्सीडेंट्स उनके गले धरे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम ये देखते हैं कि ट्रकर्स जो होते हैं, ट्रक्स चलाते हैं या डीटीसी बसेस चलाते हैं, ज्यादातर एक्सीडेंट्स ऐसे लोग करते हैं। तो मैंने तो आज तक कभी ये नहीं सुना कि क्योंकि इतने एक्सीडेंट्स होते हैं जो ट्रकर्स और जो डीटीसी बसेस चलाते हैं या जो 18 से 24 साल के, उनको लाइसेंस मत दो। क्यों? क्योंकि हम उनकी लीगल कैपेसिटी मान कर चलते हैं और हम ये कहते हैं कि इनको क्षमता है, इनको लाइसेंस दे दो, अगर ये गलत काम करेंगे तो हम इनको रोक देंगे। लेकिन जहां हम सोचते हैं कि क्षमता नहीं है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो गलत काम करेंगे तो इनको यहीं पहले ही रोक दो, इनको आगे बढ़ने ही मत दो। अब इशू ये है कि क्या ये फेयर है, क्या ये करेक्ट है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ। राजीव है सर, वो तो राजीव सर। बहुत काफी सालों से हम लोग इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बट आफ्टर लिसनिंग टू कमांडर रिजू, टू अम्बा, टू जीजा, नीलेश एंड ऑल्सो आफ्टर सीइंग जो सरकार ने जो अमेंडमेंट्स लाए हैं 2014 के बिल में, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि कोई सोल्यूशन निकले, जैसे कि रोका साहब ने भी बोला है।
कमिंग बैक टू द आरपीडी बिल 2014, उसमें जो लीगल कैपेसिटी पे अमेंडमेंट्स बिल में इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट आई वुड से टू सम एक्सटेंट, जहां पे लिमिटेड गार्जियनशिप की बात आई है और कह रहे हैं कि दैट ऑल्सो यू हैव देयर आर प्रोविजंस ऑफ अपील इफ यू नॉट सेटिस्फाइड एंड चेक मी इफ आई एम रॉन्ग अम्बा, बट आई फील इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट टू सम एक्सटेंट. Commander Bijur has expressed his viewpoint, which has been the Parivar position, and very rightly so, I would say, because it concerns intellectual development, intellectual disabilities. He spoke specifically in the context of intellectual disability and not developmental disability. And we must respect that viewpoint to some extent. Is there a way in सॉरी राजीव, मैं आपको हिंदी में बात करें प्लीज. कोई बीच का रास्ता हम निकाल सकते हैं क्या इस सिचुएशन को रख के? क्या हम आरपीडी बिल में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को ला सकते हैं अंडर लिमिटेड गार्जियनशिप? हमको सोचना पड़ेगा. और नॉट इवन अंडर लिमिटेड गार्जियनशिप हो सकता है, सारे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को नहीं हो सकता है, कुछ को, क्योंकि ऑटिज्म आई थिंक भी एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और उसपे भी वही मुद्दे हैं सामने जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में आते हैं. दिस इज जस्ट अ वाइल्ड थॉट. आई डोंट नो वेदर आई हैव सेड समथिंग व्हिच इज पॉलिटिकली करेक्ट और नॉट, बट क्या ये पॉसिबल है कि हम जो लीगल कैपेसिटी का जो इशू आरपीडी बिल 2014 में अब इशू हुआ है, उस पर हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करें? आपने जो बोला ऑटिज्म इज डेफिनेटली ए पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. हालांकि वो डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज में आता है, परंतु ऑटिज्म पेरेंट्स, ऑटिज्म एसोसिएशन, एवरी वन ऑफ देम इज फॉर limited guardianship. In fact, they require more than mental retarded persons because there the problems are much more. There are much more behavioral problems there. So autism तो उसमें आएगा ही. मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ. ये लीगल एक्सपर्ट एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ. अच्छा, हमारे लोगों को क्या मालूम? आप करिए बस, आप लीगल एक्सपर्ट से आप करिए पूरा. एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ सर, रुका सर. I forgot what I was trying to say now. Okay. Tell she gives I would first of all like to request the organizers to give me a couple of minutes, actually, to speak on this issue, which they matter,